ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। Hari Om to everyone. I hope you can see me and I'm also able to see you. Only difference is that when you are on YouTube, I cannot see you. And so you have your tea, coffee going here, there. So now you cannot do anything, unfortunately. इसको कैंसिल कर देना, कुछ और ना कैंसिल हो जाए। हैं? अच्छा. Now we have certain questions and let me see if I have the answers. First question is from Tasha Gautam from Toronto. Tasha Gautam. अच्छा, the question already is written for everybody. So she has said, for a bhakt should be, he only believe in Ishwar and not in karma prarabdha, as his faith is entirely on Ishwar. And what about in the eyes of the Jnani? Does he only believe in karma prarabdha and not in Ishwar, since he believes everything works by its nature swabhav? If so, how could be that sadhak's way of understanding the same truth is different than what a Jnani has come to understand? So let me put it like that. There is no, it is not like that there are different beliefs are there, but uh, unless you believe that there is a karma phal data, you cannot believe in Ishwar. The belief in Ishwar comes, udhar bhi idhar aa jaओ. Believe in Ishwar comes only when you know that certain situations are there. I tried to change it and it could not be changed. And when you went to Ishwar, the unchangeable situations could be changed. You will not have belief in Ishwar unless you have known the theory of karma. Unless you have believed that there is somebody who knows not only my outer actions, but the big thing is he knows my faith. Number two, he knows my intention. Number three, he knows how long I have thought about a certain thing. Number four, how much I have worked. Number five, which place I have worked. Number six, how much blessings I have. Number seven, how much expertise I have. One who knows everything, then only the fruits of action can come. Fruits of action cannot come unless there was an Ishwar. And this is the difference between the Vedant philosophy and the Purmimansa also. In Purmimansa, they don't believe in Ishwar, they only believe that karma modifies itself. But Vedant says, because you need the knowledge of so many factors to give the fruit of action, and therefore you cannot have the karmfal without Ishwar. Water. So I hope this point is clear. So it is not that somebody is believing in karmfal or he will not believe in Ishwar, or somebody is believing in Ishwar and he need not believe in karmfal. It's not like that. Without karmfal, there are only two ways to prove the Ishwar. One is karmfal siddhant and other is the intelligence in the creation. One who knows the fruit of action of millions and billions of jeev, of
millions of birth he has known, and he knows which person will be fitting that fruit of action, how he will come. Unless he knows everything, he cannot give you the fruit of action. Even if he knows, he cannot give you. Because to give the fruit, he has to know the fruit also, and he has also to know who is the perfect person in this creation to give him the fruit. So it both are complementing each other. You cannot prove Ishwar without the fruit of action. And fruit of action is known because certain things in life you cannot change. Even if you want, you cannot change, including your body. You cannot change your body beyond the limit. Many diseases are there, many people are there. So you will try to change, but it won't change. I tried, but I did not. I could not change many people also, and and then I tried to change certain situation. I could not change. Then I understood that that is the fruit of action. So life is the biggest proof that what is Ishwar and how it goes around. So this is regarding the Karma Phal Siddhant and the Ishwar Siddhant. Without that, you cannot think about, and therefore sometimes you know that I'm doing this work, Lord only knows what was my intention in doing some things. So certain people will misunderstand or some, and sometimes I may do good outwardly good, my intention may not be very good. So we will know that Ishwar knows that, so my fruit of action will not be very good. So biggest thing that we have to keep in mind that Karma Phal Siddhant and Ishwar Siddhant has to go in hand. And therefore, there is one beautiful line which I always say, that devotion is sometime coming in terms with God. When you say coming in terms with God, that means what his plan is also is my plan. I'm not going to change his plan. What his wish is my wish. And supposing some situation is not very good in my life, so through my upasana, through my sadhana, definitely I can change to a certain extent, depending on how much the situation is strong. Now coming on to the Vedantic aspect. Never Vedant is contradicting the Ishwar. It is not that Vedant does not believe in Ishwar or doesn't or contradict the Ishwar. Vedant tells about the essential nature of the Ishwar. One is the Swarup of Ishwar, other Swabhav and other is Prabhav. So essential nature of that Ishwar is Satchidanand, or essential nature of the Ishwar is the consciousness, and that is pervading everywhere. So that is where Vedant comes into play. So Vedant does not negate Ishwar, but it negates the name and form and takes to the essence of that Ishwar. I hope this point is, Tasha, I hope it is clear. So all are going hand to hand. If somebody is graduate, it's understood that he has passed 12th class. So somebody believes in Ishwar, that means he should believe in fruit of action Siddhant, that Bhagwan has given it. And something I must have done in my life, previous lives, that I am getting this, and I agree with it. Main thing is this. People easily say, it my fruits of action, but say it with a lot of sorrow and lot of revenge sometimes. But I agree with it. This is called coming in terms with issue. हमें उससे कोई समस्या नहीं है, जो गड़बड़ है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा. यू एक्सेप्ट बाय क्राइंग और एक्सेप्ट बाय नॉलेज, दैट इज अप टू यू, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है? सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट. And if that thinking that comes, that yes, there is something, and therefore what I have seen, that even if certain situation is not good or certain situation is not conducive, we feel it is very bad. So the main point is, you will feel that I have grown matured, I have become matured with that particular situation. It is difficult to get matured unless your will is not followed by God. Unless your will was totally given up, it was not accepted, it will be difficult for you to accept that Ishwar also. So something if supposing, I always say dukh, therefore dukh जो है वो वैराग के लिए और सुख सेवा के लिए. So this is 3 steps are there. You see your life, you see the world,
And world and the karma phal is the one is called tatastha lakshan, other is called swarup lakshan. So the tatastha lakshan of the Ishwar is karma phal and the creation. And swarup lakshan will come in Vedanta, which is satyam jnanam anantam brahma. So unless you have known the world and known the nature of the karma phal, it will be difficult to believe in Ishwar. And if even if you believe in Ishwar, believing in Ishwar in something and coming in terms with Ishwar is another thing. हम भगवान को मानते हैं वो एक बात है, लेकिन हम भगवान को की बात को एक्सेप्ट करते हैं वो दूसरी बात। हम मानते हैं कि भगवान है भगवान, लेकिन हम उनकी सारी बात को बहुत खुशी के साथ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एक अलग चीज, दिस इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। ओके, सो दिस थिंग इज देयर। एंड सेकेंड इज ऑफ कोर्स द एसेंस ऑफ द ईश्वर इज देयर व्हेन आई बिलीव इन ईश्वर। And second is I love God. I have come in total, I am in resonance with God. अगर इतना हो गया हमारे जीवन में कि जो चीज भगवान ने हमको दी है और हम बहुत डिफिकल्टी से डाइजेस्ट कर पा रहे थे, हम बहुत इजीली उसको डाइजेस्ट कर पा रहे। आई एम एक्सेप्टिंग एवरी सिचुएशन। सर्टेन सिचुएशन आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज बियॉन्ड द पॉइंट। You will try your best, but you will know that this thing cannot be changed, this person cannot be changed, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें कोई इसमें समस्या नहीं। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट इज देयर, लेट द गॉड्स विल प्रीवेल। ये इसी से भक्ति बढ़ती, कर्म फल के सिद्धांत से भक्ति बढ़ेगी। और कुछ चीज ऐसी आएगी आपके लाइफ में जो कि आपको लगेगा कि यहाँ पे कर्म फल का सिद्धांत सुपरसीड हो गया। आई शुड नॉट गेट दिस एज पर माई फ्रूट ऑफ एक्शन एंड इट शुड गो अवे। Some good things should go away because every fruits of action go away, लेकिन वो जाता नहीं है। फिर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से ईश्वर का स्पेशल रोल आ रहा है हमारे लाइफ, जहां पे हमें किसी का स्पेशल इंटरेस्ट हमारे में दिखता है, वहां फिर प्यार हो जाता है। तो 3 स्टेप ईश्वरत्व है। एक तो है कि हम उनके कर्म फल को मानते हैं, दूसरे हम उनके टर्म्स में आते हैं, तीसरे हमको लगता है कि उन्होंने हमको स्पेशल दिया जो कि हम डिजर्व नहीं करते। Now, next point is about that the Vedanta is there. Vedanta believes, yes, Atma is there, but essential nature of that God is the consciousness or the self. That is where we have to. Now, please note my point. This only God tells. जब तक भगवान आपको नहीं वेदांत पढ़ाएंगे तो आपको वेदांत समझ में नहीं आएगा, आप जीवन में जी नहीं पाओगे। गीता और वेदांत, रामायण, भागवत, ये सब भगवान को ही पढ़ाना पड़ेगा। हमें नहीं लगता कि ये मनुष्य सृष्टि से पढ़ा जा सकता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज की चीजें नहीं है, ये बियॉन्ड द वर्ड्स है। इसलिए जो लोग उपासना नहीं करते वो वेदांत न तो भागवत पढ़ सकते हैं, न पढ़ा सकते हैं, न तो रामायण पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके लिए स्पेशल कोई भगवान को ही पढ़ाना पड़ेगा। अब वही भगवान हमारे जीवन में थर्ड स्टेप, तो 3 लेवल ईश्वर के हो गए। अब जो एसेंशियल नेचर ऑफ ईश्वर, ईश्वर को लगता है तुम जो है अब जन्म मरण से मुक्त हो जाओ। अब वो ईश्वर कहीं से किसी के मन में हमारे लिए भाव लाएगा, हमारी परिस्थिति शांत करेगा, हमारे अंदर बहुत वैराग डालेगा। और जैसा गीता में आता है, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम, ऐसा करते करते ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति थे। अब वो किसी को लाना पड़ेगा, उसी को हमको वेदांत पढ़ाना पड़ेगा। हमें दृढ़ निश्चय है कि वेदांत ईश्वर ही पढ़ाएगा, तभी समझ में आएगा। हम लोग अपने मन से पढ़ के, किताब से पढ़ के हम लोग नहीं समझ पाए। अनलेस ईश्वर कम्स इन एवरी साधना, आई कैन गारंटी योर साधना विल नॉट बी गुड। चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो जप हो, चाहे वो पूजा हो, भगवान को कहीं ना कहीं से हमारे में प्रवेश करना पड़ेगा। और फिर वही ईश्वर अपने अपने स्वरूप को बताता है कि सृष्टि जब नहीं थी तो हम कैसे थे। आत्मा व इदम अग्रे आसीत, सदैव व इदम अग्रे आसीत, छांदोग्य में आया। तो सृष्टि नहीं थी उस समय हम क्या हैं और अभी भी हम क्या हैं। तो जो उनका जो ऐसा स्वरूप है जिसमें कि नाम रूप नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें वो कर्म फल दाता नहीं है, जिसमें जीव नहीं है जगत में, वो ईश्वर क्या है, उसके बारे में जब ईश्वर बताना शुरू करेंगे तब हमें ईश्वर के स्वरूप का अनुभव होगा। प्लीज नोट,
इट इज ऑल ग्रेजुअल स्टेप्स। तीनों बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक के बाद दूसरे पे जाना पड़ेगा। अगर भक्ति नहीं होगी तो ईश्वर वेदांत आप सुन लोगे, पढ़ लोगे, शायद बोल भी लोगे, लेकिन कुछ अंतर नहीं आएगा वेदांत। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर सॉरोज एंड जॉयस। आई विल बी सेम। आई विल बी, अर्लियर आई वॉज अ नॉन वेदांतिक सैड पर्सन, आई एम वेदांतिकली सैड पर्सन। बस इतना ही डिफरेंस आएगा। Earlier, I was illiterate fool. I was now I'm literate fool. Nothing else will be there. I'll be teaching. I'll be talking. I'll be reading. I will have books. बट ईश्वर आए बिना हमें नहीं लगता कि वेदांत का कुछ प्रभाव पड़ेगा लाइफ में। दिस इज माई गारंटी। चलो भाई, एक क्वेश्चन तो हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अनुजा श्रीवास्तव जी का है। आई होप वो हाँ हैं, खारगर अनुजा से जी। हैं, हाँ, ठीक है। स्वामी जी आप कहते हैं अपनी इष्ट से बात करो, उनको बुलाओ बार बार, उनके दर्शन की अभिलाषा करो। मुझे मेरे कृष्ण से बड़ा प्रेम है, उनकी लीलाएं सुनकर हृदय द्रवित हो जाता है, परंतु उस विरह में ही आनंद आता है। कथा में जब वो आते हैं या व्रत छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो भी आनंद आता है। उनके लिए भावुक होने में ही आनंद आता है, पर वे साक्षात मेरे सामने आए ऐसी इच्छा मन में सहज नहीं होती। क्या मेरी सोच गलत है? अगर हाँ तो किस उपाय से मेरी इच्छा प्रकट करो। देखिए, ऐसा है कि विरह तब आता है जब किसी को संयोग का सुख मिला। विरह के बिना हमारे हिसाब से कोई साधना हो नहीं सकती, जब तक कि बहुत सुख किसी को ना मिला हो। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। देर आर सम पीपल हु आर फ्रॉम अदर प्लेसेस, आई होप दे विल अंडरस्टैंड, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड आल्सो, इट इज ओके। इट डजंट मैटर, आई विल ट्रांसलेट इट, डोंट वरी। बड़ा बढ़िया दृश्य है, यहाँ से देखो, बड़ा अच्छा दृश्य है। तो देखिए, ऐसा है, जो विरह होता है ना, वो क्या है, जब कोई बहुत अच्छा लगता है तभी उसके जाने में विरह होता है। तो फर्स्ट कंडीशन ही है साधना में, जो हमें लगता है, हो सकता है हमारी बात आपको ना ठीक लगे, लेकिन बिना दर्द के कोई साधना होती नहीं। दर्द तभी होता है जबकि कहीं पे बहुत सुख हो और वो जा रहा हो। विदाउट पेन यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन एनी साथ। इन मंडेन वर्ड्स वी से विदाउट पेन देर इज नो डिलीवरी। सो कुछ ना कुछ दर्द तो होता है। लेकिन जो आपने जैसा बोला कि भगवान कृष्ण के विरह में और उनके मतलब उनके संयोग की उतनी इच्छा नहीं होती, लेकिन उनके गुण सुनने की इच्छा होती है, उन गुण से संयोग की इच्छा है ना। हो सकता है सामने आने की उतनी इच्छा ना हो किसी की, लेकिन उनके गुण को सुनने की, उनकी लीला के संयोग की इच्छा है। तो ऐसा नहीं कि कोई इच्छा नहीं है, किसी दूसरे रूप से संयोग की इच्छा है। हमें सत्संग की सुनने की इच्छा है, उनका नाम लेने की इच्छा है, कहीं न कहीं इच्छा जरूर है, जिसके कारण उनके न रहने से वो विरह होता है। हम बोले आपसे कि आप जो लोग जप करते हैं, आप एक दिन जप मत करिए। हम आपको 24 घंटे जप से रोक दें कि आप 24 घंटे जप मत करें, और हम उस दिन को बढ़ा दें, 2 दिन 3 दिन कर दें, तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। हो सकता है आपके सामने भगवान की इच्छा ना हो, लेकिन उनकी जप की इच्छा बहुत ज्यादा, या पूजा की इच्छा होगी, या सत्संग की इच्छा। तो हाँ, उसको ऑन कर दो, ये टेबल लैंप। तो ये जो है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो, ऐसा आया, भागवत में भी ऐसा आया, जब रासलीला हुई तो रासलीला में एक गोपी को उसके पति ने रोक दिया, और वो भाग नहीं पाई। और जब वो भाग नहीं पाई, अंदर चली गई वो कमरे में। आप लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग सुनते रहिए। हाँ, तो वो अंदर चली गई। जब वो अंदर चली गई, वहां पे सुखदेव जी ने एक लाइन लिखी, ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष तीव्र विरह, विरह ताप धुत अशुभा। इतनी तीव्र विरह हुआ कि इतना तेज उसके अंदर जलन हुई भगवान को प्राप्त करने की, कि जितने उसके दूसरे संस्कार थे सब के सब उस आग में जल गए।
ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष तीव्र विरह आतुर धुत अशुभ। इतनी तीव्र विरह, जैसे कि किसी किसी मोम को जब हम जलाते हैं तो उसका शेप, वो उसको दूसरे जिससे विरह होता है उसका शेप बहुत तेज आता है। इसलिए इस विरह की बहुत जरूरत है। चाहे पूजा में भी विरह नहीं होगा तो पूजा नहीं होगी, जप में भी विरह नहीं होगा तो जप नहीं। अगर आपने भगवान के साथ बैठने का की तकलीफ ही नहीं हो आपको होती कि हम नहीं, आज नहीं बैठे, तो फिर हम बैठ नहीं, इच्छा होगी वहां। बिना सेवा का विरह नहीं होगा तो सेवा ही नहीं होगी किसी। इसलिए विरह की बहुत बड़ी जरूरत हमारे यहाँ बोली गई है। और उसमें हमें पूरे शास्त्र में बस दो लोग बहुत ज्यादा विरह वाले देखते हैं, तो रामायण में तो हमारे श्री भरत जी हैं, और भागवत में गोपिकाएं हैं। ये दो लोग विरह के आचार्य हैं। लेकिन इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। अगर आपसे इरेगुलर हो रहा है जप, या इरेगुलर हो रही है पूजा, तो कुछ देर बैठ के आप 5 मिनट तक अफसोस करिए कि हम जप नहीं करते। कुछ देर 10-5 मिनट जरा अपनों अपने को आप टाइट करिए कि कितनी शर्म की बात है कि हमने आज जप नहीं किया। हमने खाना खाया, नहाया और ब्रेकफास्ट किया, सबसे मिले, मोबाइल में बात किया, लेकिन जिसने हमको सब कुछ दिया उसके लिए हमने 10 मिनट भी नहीं दिया। ये कितने दुख की बात है अपने लिए। जब तक इस तरह का तड़पन नहीं होगी तो हमें नहीं लगता कि आपकी साधना में धार आएगी कोई। हमने पाठ नहीं किया आज, जब शरीर ने हमारा काम नहीं किया तो हम क्यों शरीर को खाना दें? उसका खाना ही बंद, कल का खाना ही नहीं, पहले पूरा करो हमारा काम। हम मर जाएंगे भगवान के लिए, हम उनको नहीं छोड़ सकते, हम उनके बिना नहीं रह सकते, हम उनको बिना दिए। इसलिए उसकी विरह की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चाहे वो हो सकता है जैसा हमने बताया कि सामने खड़े हुए वो हमारी उतना तीव्र ना हो, बट लेकिन उनकी लीला से, उनकी कथा से, उनके सत्संग से, उनके नाम से कहीं न कहीं से संयोग जरूर जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारा मन द्रवित होता है। और होना चाहिए, मन की कठोरता बिना विरह के नहीं जाती। हम लोग बहुत कठोर हैं अंदर से, वी आर वेरी हार्ड फ्रॉम इनसाइड। अहंकार ने हमको बहुत कठोर बना दिया। आभा शाह का एक प्रश्न है, उन्होंने लिखा है कि प्रणाम स्वामी जी, प्लीज गिव सम टॉक्स ऑन आश्रम धर्म मोक्ष धर्म के का वर्ण, स्कंद 7 अध्याय 13-14, खासकर 15। धन्यवाद। ये तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया, मतलब बहुत लंबा है ये। और डरबन में इसको हमने पूरा डिटेल में लिया हुआ है, पहली बार जब कोविड था। तो कोई बता दे, अगर कोई हो वहां का, इनको कोई लिंक दे दे उस दिन की टॉक क्या है। इसमें कई कई टॉपिक्स हैं। हमारे ख्याल से कई क्लासेस हुए होंगे कि आश्रम क्या है, वर्ण क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, और 15वां अध्याय सारा डिटेल में काफी कुछ हुआ है। आप उसको पढ़िएगा या सुनिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है शलाका शलाका जी का, फ्रॉम पुणे। अच्छा, हाँ हम देख रहे हैं आपको, आपके बगल में राम भगवान है तो तो आपका प्रश्न है, एक साधक तमोगुणी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करे? एक साधक तमोगुणी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करे? भाई ये तो आपने हमारे दिल का प्रश्न पूछ लिया। हमारे ख्याल से तमोगुणी के साथ, अगर आप सत्य गुणी है तमो, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। तब दो ही वृत्ति होती है, क्षमा और दया, इसी पर रह सकते, वरना बहुत इरिटेशन होगा उसके साथ। मतलब इतना मिसमैच होता है हर जगह तामसिक व्यक्ति के साथ। और अगर हम सात्विक हैं, उसके सोने में, जागने में, खाने में, उठने में, बोलने में, क्योंकि जो हमारा गुण होता है ना, वो कहीं ना हर जगह से पीप करेगा वो। ऐसा नहीं होगा कि कोई तमोगुणी है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्सेज होंगे हमें कहीं ना कहीं गड़ेगा।
तो दैट इज द एरिया ऑफ योर ग्रोथ। हमें नहीं लगता कि कोई बिना डिफिकल्ट आदमी हुए आसपास आप ग्रो कर सकते। एक ग्रोथ का एक तरीका यह है कि यू हैव टू बी विथ सम डिफिकल्ट पर्सन, देन ओनली यू कैन ग्रो फास्टर। क्योंकि उसी में आपकी क्षमा, दया, धैर्य, विश्वास, कर्म फल को प्रसाद समझना, ये सब चीज तभी आ सकती। इट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर कि हम लोग भगवान ऐसे लोगों को कभी कभी आसपास रख देते हैं जो इनका नेचर बिल्कुल नहीं मैच करता, और शायद किसी में अहंकार हो, शायद राग हो, चाहे द्वेष हो, लेकिन यू हैव टू लिव विथ समबडी। अनलेस यू आर इन रफ वाटर्स यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग। आप लोग स्विमिंग जानते हैं, हमको तो पता नहीं। क्यों भाई, अभी है ना? हाँ, तो स्विमिंग जानते हैं ना? अच्छा। तो तो भगवान हम लोग का जो पेशेंस होता है, कितना सुन सकते हैं, कितना सह सकते हैं, कितना टॉलरेट कर सकते हैं, कभी कभी हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है। क्योंकि हमको पता लगता है कि कितनी दया है, कितनी क्षमा है, हाउ मच आई हैव forgiveness, how much I have compassion, how much I can see the same situation in a bigger picture, कि भगवान ने हमको इतने अच्छे अच्छे लोग दिए हैं, if this situation is there तो I can go through it also. So it is a real training of the mind. तो उनके साथ रहने का तरीका, यू हैव टू टेक दैट एज अ मेडिसिन। और आप अपने अंदर दया, क्षमा, धैर्य और ईश्वर विश्वास, ये चार वृत्ति से ही आप ऐसे लोगों के साथ रह सकते। नहीं तो बहुत माइंड इरिटेट होगा, और इरिटेट होने के बाद जो हमारी साधना होती है थोड़ी बहुत, वो सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनके दोष देखने में सारा समय चला जाएगा। हर जगह गलती उन लोग करते हैं, कुछ लोग मास्टर ऑफ मिस्टेक्स हैं। हाँ, कभी ऐसा कोई दिन नहीं होता गलती ना उनसे, हर चीज भूल जाएंगे, हर चीज गलत सलत करेंगे, गलत बोलेंगे, गलत समझेंगे। तो धीरे धीरे हम उनका इंप्रेशन ले लेते। स्लोली वी टेक द इंप्रेशन ऑफ सच पीपल इन आवर लाइफ। And a time comes that when we take impression of somebody's negativity, that is called dvesh or dislike. And when there is dislike, so slight reaction of that person makes me very upset, because I have gone through a lot. So please see that you don't get attached to somebody's tamasic nature. Don't get attached to somebody's negativity. Let it be external affair. I have nothing to do with it. That is also a kind of rag. जैसा है वैसा हम उसको स्वीकार करते हैं, आनंद में रहो, जय बोलो सीता राम की आनंद में। अब जो जैसा है वैसा है, हम कुछ कर नहीं सकते। आई कैन नॉट डू अ लॉट टू चेंज द पर्सन, ठीक है, बट आई कैन डेवलप डेफिनेटली विद दैट पर्सन। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। यू हैव टू ग्रो। If I am reacting, that means I have not developed in spirituality. The development in spirituality is known through compassion and through his ability to accept. That is a sign of a spiritual person. When you start getting too close to somebody's negativity, then those negative points will come repeatedly in your mind, and it will kidnap all your peace. आपकी सारी शांति, सारा प्रेम, सारा जिसको बोलते हैं जो मीठापन होता है हमारे पर्सनालिटी में, वो चला जाए। जब स्वीटनेस चली जाती है तो भगवान को हम कुछ देते नहीं, सारा वो हम कुछ देने लायक नहीं होते। I'm not worthy of giving something because I am not sweet at that time. Thinking of somebody's negativity, you have lost your sweetness. And you are not contributing, because what words and what vritti is there, that is the flower. Every vritti एक पुष्प है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम बिंदतिमान। तो जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा है, वो गधा है, वो भैंस है, ये जो हम उसके सामने अर्चना कर रहे हैं, हाँ, और ये बेकार है, इसने जीवन खराब कर दिया हमारा, ये जो वृत्ति हमारी आ रही है, ईश्वर को जा रही है। रिस्की पॉइंट ये है। तो ईश्वर के साथ हम अपना संबंध क्यों खराब करें एक आदमी की गलती से? होगा गधा, होगा वो जो भी जानवर हो, जिराफ है, जो कुछ भी है, लेकिन हमें नहीं मतलब है। हम क्यों किसी की नेगेटिविटीज, व्हाई शुड आई कम सो क्लोज? इट्स एक्सटर्नल मैटर, लेट हिम गो। आई हैव मेनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड थिंक अबाउट। आप रामायण पढ़िए, आप भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, एक एक से अच्छे लोग भी जीवन में आए हैं। गुरुदेव के बारे में सोचिए, तपोवन महाराज के बारे में सोचिए,
अपने गुरु के बारे में सोचिए, अपने भगवान के बारे में सोचिए। इट शुड नॉट बी ड्वेल्ड अप। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप दुखी हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, यू इंटरनलाइज दैट पर्सन एंड दैट इंसिडेंट अलॉट। टू इमोशन विच इंटरनलाइजेस द पर्सन is being sad, angry, and very happy, very excited with it. Three emotions are. So you have to be very careful that these three emotions, I'm not going to internalize the negative. Let it be there. I'm not a judge for anything. जैसा हो सकता है ग्रो कर जाए आगे चल के, कौन जाने, पता नहीं भगवान की क्या कृपा आ जाए। यू डोंट नो हु विल बिकम व्हाट इन वंस लाइफ। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। पंकज वकील हैं क्या? पंकज वकील है। जी सर। हाँ, पंकज वकील। When will that day come when you'll visit us at our residence and have भिक्षा? सृष्टि में एक विधान है कि जो भी अच्छा संकल्प होता है वो आगे पीछे जरूर पूरा हो जाता है। There is whatever is the noble sankalp in anybody's mind, it will take time or birth, but it'll definitely get fulfilled. Only thing we have to intensify. Definitely हम आपके घर आएंगे। अलका जी है, अलका वकील हो। हरिओम, हम देख भगवान का नाम लीजिए, आप सत्संग सुनिए। बेस्ट मीटिंग दैट वी हैव इन सत्संग, लाइक वी आर मीटिंग हियर। एंड बिगेस्ट थिंग इज दैट यू हैव भाव, यू हैव इमोशन। बस हम तो भाव को देखते हैं, हमारे लिए वही बहुत बड़ा है। दिल की दूरी नहीं होनी चाहिए। जो दूरी टाइम स्पेस की होती है वो नेचुरल हो जाती है, लेकिन मन से हमारी दूरी नहीं होनी चाहिए। सो वो अपने भगवान के साथ बना के रखना चाहिए। ठीक है क्या धार्मिक जी? अच्छा, हाँ। हरिओम स्वामी जी, जीवन में जब फाइनेंशियल की ऐसी परिस्थिति आ, कुछ रास्ता ही नहीं मिलना होता, मन डिप्रेशन में चला जाता है, तो इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए कोई उपाय बताइए, कोई स्तोत्र का पाठ। पहली बात तो डिप्रेशन क्या है? नहीं है, नहीं है। सब चला एकदम, सब खो जाए, क्या हो जाएगा? एट द मोस्ट 2 समय का खाना भगवान दे देंगे। जिंदगी में जब तक हम लोग के सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आती जबकि हम कुछ नहीं कर पाते, तब तक हमारा भगवान में विश्वास नहीं बढ़ता है। प्रार्थना में दमी तब आती है जब प्रार्थना इज इन दैट एरिया वेयर यू हैव फेल्ड टोटली एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग। तो प्रेयर विल इज इन दैट एरिया ओनली, जहां पे हमारा काम अपने आप हो रहा है, प्रारब्ध अच्छा है, वहां पे हम प्रार्थना नहीं कर सकते ज्यादा। जो प्रार्थना में लगन और आग लग जाती है प्रार्थना में, दैट इंटेंसिटी दैट इट कम्स, इट विल कम ओनली व्हेन we have something badly lacking which I need. So first of all, think that is a blessings. बहुत अच्छी बात है, आज कुछ भी नहीं है। सेकेंड थिंग इज स्तोत्र वगैरह है, कनकधारा स्तोत्र है, एक लक्ष्मी अष्टकम है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी अष्टकम छोटा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। कनकधारा की संस्कृत ऊपर नीचे होती है, वो है। श्री सूक्त है, उसका पाठ कर सकते हैं। तो डू सम पार्ट लाइक, और डेफिनेटली चेंज आएगा। एंड प्रे टू गॉड, but don't allow the outer situation to come in your mind and disturb. That God who has given us this will take care of this. Beyond the point, you cannot do anything. And that is where we need the faith system. Increase your faith system when the prarabdha system is failing. When your prarabdha is very good, you may live on less on faith. But certain area your prarabdha will not be there. Your faith has to be reinforced more and more. आपको और ज्यादा विश्वास चाहिए भगवान, सब ठीक हो जाता है। कौन है जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हर समय अच्छी रहती? सबके साथ ये सब ऊपर नीचे होता रहता है। दैट इज फाइन। चलो भाई, अगले में हम आते हैं। प्रवीण पांडे फ्रॉम साउथ अफ्रीका है क्या प्रवीण जी? स्वामी जी, आई डोंट थिंक स्वामी जी इज अच्छा, नॉट ऑनलाइन। प्रवीण जी नहीं है। ओके, हम अगले प्रश्न पे आ जाएं। कैन आई कम टू अनदर क्वेश्चन? जी स्वामी जी, वी कैन मूव टू प्रेम कुमार गुप्ता जी फ्रॉम ओके, इंदौर, वो है। प्रेम जी तो हैं, प्रेम से बैठे हैं प्रेम जी। अच्छा, जी तो उनका प्रश्न ये है, हम अपने आप को कैसे जाने, इसके लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? भाई पहली बात तो क्यों जाने? न जाने बढ़िया खाए पिए पूरी कचौड़ी खाइए, क्या अपने आप को जानेंगे? क्या हुआ?
इधर, अच्छा तो सेट कर, इधर आ जाओ। तो हम अपने आप को, लिखा है कि हम अपने आप को कैसे जाने, इसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हाँ ठीक है रहने दो, जैसा उसको वैसे बाद में देखें। अगर अपने आप को नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन है अपने में अपूर्णता का अनुभव। होल पॉइंट इज देयर। अपने आप को जानना ये नहीं है कि हमें स्विट्जरलैंड जानना है, या हमें अमेरिका जानना है, या हमें कोई जानना है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कितने वोट से जीतेगी। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव इशू। इट्स एन इशू दैट आई नीड समथिंग आउटसाइड टू गिव मी हेल्प। I needs outside, I am incomplete and world is real. That is the problem. To get out that I am not incomplete. I am in time and space. I am in an object. I am a person. I am having a caste. I am having a religion. I am having a shape. I have hundreds of notions which are totally wrong. And to prove that wrong notion in the world, we work. Our working is to prove the wrong notion. And when the situation do not comply to a wrong notion, we are sad. Sadness is because some of my wrong notion has been contradicted by the situation. हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास रॉन्ग नोशन है और वो नहीं सही हो रहा है। अगर आपका राइट नोशन है तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। अगर हमको लगता है कि हम बड़े हैं, हमको सम्मान मिलना चाहिए, हमारे बेटे को बेटी को, दे शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम राइट, हमको ये लगता है, इट विल बी कॉन्ट्रडिक्टेड। लेकिन हमको लगता नहीं हम छोटे हैं, डोंट नीड एनीथिंग, इट कैनॉट बी कॉन्ट्रडिक्टेड। अटैचमेंट कैन बी कॉन्ट्रडिक्टेड, डिटैचमेंट नीड नॉट बी, इट कैन नॉट नेवर बी कॉन्ट्रडिक्टेड। अगर अटैचमेंट है तो हमारे, जिससे हम अटैच्ड हैं हमको छोड़ सकता है, जिससे हम अटैच्ड हैं वो हमारा रिस्पॉन्स हमको नहीं देगा। आज रिस्पॉन्स इज नॉट वेरी गुड टू मी, वंस अपॉन अ टाइम ही वाज वेरी गुड टू मी, ये हो सकता है। लेकिन हमारा डिटैचमेंट है तो रिस्पॉन्स नहीं देने से हमें फर्क नहीं पड़ता है। Any right notion which you have will not be contradicted. Wrong notion will be contradicted. Don't live a life through which situation will contradict you. You will be suffering internally. And therefore we need to know ourselves a lot. इसलिए हमको अपने आप को जानना पड़ेगा। चारों तरफ हम पेड़ हैं, जंगल है, पहाड़ है, अब वो भी सुन रहे हैं। और एक दो लोग हैं, बोले नाम मत बताइएगा, तो हम बता देंगे। तो डोंट हैव अ नोशन विच ब्रिंग्स अ कमोशन। गुरुदेव यूज्ड टू यूज वेरी नाइस वर्ड। उनका जब कोई परेशान होता था तो गुरुदेव एक लाइन बोलते थे, हिंदी में बोलते, तब भी कहा था। बोले हमने तुमसे तब भी कहा था। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आई हैड टोल्ड यू दिस थिंग। अटैचमेंट विल भी, कहीं ना कहीं आपके अटैचमेंट को कोई तोड़ेगा, अहंकार को तोड़ेगा, द्वेष को तोड़ेगा, ईर्ष्या को तोड़ेगा, हमारे मान को तोड़ेगा, हमारे मोह को तोड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और फिर तोड़ने पे हमको दुख खूब होगा। अब लो आप गर्मा गर्म दुख। लेकिन भक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता। हम मर के भी वो भक्ति फिर मिलेगी हमको। हमारे वैराग को कोई नहीं तोड़ सकता है। हमारे आत्मज्ञान की तो बात ही नहीं है, प्रलय में भी नहीं जाता वो आत्मज्ञान। सो डोंट लिव अ लाइफ थ्रू विच यू योरसेल्फ विल बी कॉट इन समथिंग। इसीलिए आप अपने को जानने की जरूरत पड़ती है। नहीं जानेंगे तो ऐसा नहीं, नुकसान वेदांत का कोई नुकसान नहीं है। आई विल फाइंड माई सेल्फ सराउंडेड बाई प्रॉब्लम्स and you will say it is my problem. Remove my from problem, let it be problem of something else. ये तो बोलना ही छोड़ दें, इट इज माई प्रॉब्लम, इट इज प्रॉब्लम गॉड्स प्रॉब्लम, इतना बोल दीजिए। भगवान की प्रॉब्लम, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे के बैग में भगवान होना चाहिए बस, उसमें दूसरा नहीं अटता। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये, दूसरा नहीं आएगा उसमें। तो उसके बाद होता है कि रियली हम कैसे जाने अपने आप को। लेकिन क्या क्या फर्क पड़ता है, दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो आई विल बी फाइंडिंग माई सेल्फ इन लॉट ऑफ
रॉन्ग रॉन्ग आइडियाज। हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा बेटा नहीं रहेगा, बेटी नहीं रहेगी, पिता नहीं रहेंगे, हमने काम इतना किया, फल नहीं मिल रहा अच्छा सा, हमने उनके लिए इतना किया, आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स। 100,000 ऑफ रॉन्ग नोशंस विल बी क्लाउडिंग माई ओन माइंड। ये आएगा कि हमें डर लग रहा है, ये आएगा कि हम कब तक ऐसे रहेंगे, ये आएगा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कब बोलें। देयर कैन बी थाउजेंड थिंग्स दैट विल कम इन माई माइंड, and therefore we need to know that who am I. And there is where Vedant comes into picture, that you are that self and the world is not real. And then we need a teacher, we need a guru to tell me how you are saying this point day and night. और इसके लिए प्रयास यही है, श्रवण मनन ही इसका प्रयास है, ध्यान प्रयास है। खूब सुनना पड़ेगा, एवरीडे हमको सुनना पड़ेगा, तभी हमारी प्रॉब्लम जाएगी। दिस इज इन शॉर्ट, बाकी चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन जहां पे भी दुख है वहां ज्ञान है, अज्ञान के बेटे का ही नाम दुख है। समथिंग आई एम मिसिंग टू अंडरस्टैंड इवन इन वर्ल्डली मैटर। इफ आई एम सैड, इट इज इंडिकेशन दैट समथिंग आई एम मिसिंग टू गेट हियर। समथिंग आई एम सीइंग व्हिच इज नॉट देयर, एंड आई एम नॉट सीइंग व्हिच इज देयर। दोनों दोनों तरह से हम कुछ ना कुछ गड़बड़ देख रहे हैं, तभी हमें सौरव होगा, तभी हमें डर होगा। And therefore, we need to know what is the nature of the self, and how to know will definitely then teacher will come, then Ishwar will come. ये इसका ये आंसर है। देखो श्वेता श्वेतर उपनिषद है, वहां द स्टूडेंट सेज टू द टीचर कि ऐसा कोई हमें आत्मज्ञान ना हो, अपने बारे में ना जाने हो, दुख ना हो। तो बोले हाँ, उसका एक ही तरीका है, यदा यदा चर्मवद आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा दुखम विनिर्गच्छन्ति। If you can fold the whole space and tuck in your arm, अगर तुम पूरे स्पेस को, आकाश को कैलेंडर की तरह बना लो, यू कैन पुट इट लाइक इन योर आर्म पिट। तो शिष्य इनका ये कैसे पॉसिबल है, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो बोला ऐसे ही बिना आत्मज्ञान के दुख भी नहीं जा सकते। आप जितना उठक पिटक कर लो, ब्रह्मा बन जाओ, ब्रह्मा जी को भी दुख हो जाता है। अब बताओ, ब्रह्मा जी, नारद भागवत में उनको दुख हो गया, ब्रह्मा मोह का प्रसंग आता है। पुराण पढ़ो तो ब्रह्मा जी की बहुत ही ज्यादा, कई बार वो मिस्टेक करते हैं। मैक्सिमम मिस्टेक तो इंद्र करते हैं, उनकी पावर ज्यादा है। जिसके पास पावर ज्यादा होती है, मिस्टेक ज्यादा होगी। पावर विदाउट पावरफुल इज इक्वल टू फुलिशनेस, फुलिश बन जाता है व्यक्ति। लेकिन ब्रह्मा जी गलती कर देते हैं, तो कोई कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। There is no other solution. World will go away, my mind will go away, my body will go away, I will take another birth. ये चलता ही रहेगा सिलसिला हमेशा। There is no way we can get out of it. And therefore the knowledge of the self is very, very important. It is not optional, it is mandatory. And how to get it? We have to go through the proper process of कर्म योग etc. उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब उपनिषद ने तो यहां तक डांट लगा दिया, यह चेद अवेदिता सत्यमस्ति, न चेदिया अवेदिता महति विनष्टि। बोले अगर आप मरने के पहले आत्मज्ञान हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत बड़ा, तो हमने सत्यानाश कर डाला। इतनी डांट लगाया उपनिषद ने, आपसे हम क्या बताएं। शाम का समय है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा मूड सबका, तो नहीं बोलते ज्यादा। कहीं रात है, कहीं शाम है। चलो भाई, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आभा शाह फ्रॉम नागपुर, क्वेश्चन। प्रणाम स्वामी जी, हम आपको काफी सुनते हैं। काफी सुनते हैं या काफी पीते हुए सुनते हैं? अच्छा। अच्छा। अच्छा, हम सुनते हैं। चलिए, भागवत महापुराण और महाभारत दोनों में जो कॉस्मोलॉजी है वह कुछ समझ में नहीं आती। क्या कभी उस पर लेक्चर सीरीज हो सकती है? 5 समुद्रों से विभाजन करके बनाए गए समुद्र, मेरु पर्वत मध्य में, ऊपर नीचे लोक, समझने की जिज्ञासा। देखिए, हम बहुत शॉर्ट में बोलते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कॉस्मोलॉजी, अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी।
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा, जो अंदर है वही बाहर है। जो साथ साथ जो इतने ओशन की बात किया गया ना कि लवण का समुद्र है, सॉल्ट ओशन है, और इक्षुदंड रस का, शुगर केन जूस का ओशन है, फिर दही का ओशन है, शहद का ओशन है। उसका सिंपल सा हम एक सिद्धांत बताते हैं, कोई भी चीज जो थोड़े से लेवल पे माइक्रोकॉज्म में होती है वो अनंत लेवल में मैक्रोकॉज्म में तो होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी उनका अंश है। हमारे शरीर में भी सॉल्ट है, स्वीटनेस है, भले माइंड में ना हो, शरीर में। सो तो वो अ, इसीलिए डायबिटीज हो जाता है लोगों को, शुगर फैक्ट्री खुल जाती है। क्यों बेईमान? तो ये है। या हमारे अंदर जो है दही का भी कुछ अंश है, दूध का भी कुछ अंश है, वगैरह वगैरह। तो इसका अनंत अंश मौजूद है। बहुत डिटेल में तो हम बहुत आगे कभी बताएंगे, वी विल सी लेटर ऑन। और जो पीठ की हमारी रीढ़ की हड्डी है, जैसे माइक्रोकॉस्म में, वैसे मेरुदंड है पूरे कॉस्मोस। वो एक मेरुदंड है। दिस इज दैट मेरु, मेरु इज, इसको मेरुदंड भी बोलते हैं। जो रीढ़ की हड्डी उसको मेरुदंड बोलते हैं, और वहां पे उसको मेरु बोल, सुमेरु पर्वत बोलते हैं। और उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ रहता है। तो एकदम सही है, और बहुत बड़ा है वो। ये तो जम्बू द्वीप में ही हम लोग हैं। और जो द्वीप का कॉन्सेप्ट कि दिस थिंग इज इन द आइलैंड, उसको ऐसे समझिए, जब बच्चा पेट में होता है तो जो एक वाटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, हाँ वो उसके उससे घिरा हुआ है वो। जैसे माइक्रोकॉस्म में उससे घिरा हुआ है, उस तरह से पूरा कॉस्मोस वो एक पानी से घिरा हुआ है। इसलिए द्वीप है। नौ नौ तो द्वीप है यहाँ पे। भागवत में बहुत डिस्क्रिप्शन है, 5th कैंटो में, 5वें कैंटो में। लेकिन उसका प्रयोजन ये नहीं कि हम उसको बहुत जाने। उसका प्रयोजन है कि जगत में हमारा काम कितना छोटा है, और हमारी छोटी सी दुनिया कितनी छोटी है, उसको जान के उससे वैराग हो जाए। और भगवान कितने बड़े हैं, हाउ बिग इज द गॉड हु हैज मिलियंस यू कैनॉट सी ऑल्सो, एंड हाउ स्मॉल इज अवर वर्ल्ड, एंड हाउ स्मॉल इज अवर अचीवमेंट। वी कैन मेक वन हाउस, वन रूम, वन कार। ही हैज मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज अराउंड। व्हाट व्हाट पावरफुल दैट गॉड। भक्ति एंड वैराग बढ़ाने के लिए है। एंड उसके डिटेल्स भी अवेलेबल हैं, कभी क्लास होगा तो हम लोग उसको देखेंगे। हाउ इज इट ऑल अबाउट? ठीक है आबा जी, वी विल सी मोर लेटर ऑन। लेकिन इसको आप माइक्रोकॉस्म, व्यष्टि और समष्टि से ट्राई टू रिलेट व्यष्टि एंड समष्टि, यू विल हैव मोर नॉलेज, यू विल हैव मोर क्लैरिटी अबाउट इट। एक क्वेश्चन और लेके हम बोल देंगे। आपने कहा जप करने से जप का देवता आ जाता है, ये अनुजा श्रीवास्तव जी का है। हरे कृष्ण हरे राम का जप हम 10 साल से कर रहे हैं। यह मंत्र हमें तब तक जो गीतिका की शिक्षिका थी उन्होंने करने को कहा था, उनकी आज्ञा शुरू हुआ। क्या यह जप सही है? क्योंकि जब आप जप का उल्लेख करते हैं तो जप एक ही भगवान का होता है। यह जप बड़ा भी है, कभी कभी लगता हम पूरा नहीं बोल पाते, आगे बढ़ जाते, हर समय मन नहीं लगता, एकाग्रता भी मुश्किल से होती, 10 माला 10-11 माला हो पाती है। प्रश्न ये है कि जब सही साधना है, दूसरा मंत्र लेना चाहिए, इस पे जारी रहना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि इतने सालों तक जप करने पे मैकेनिकल प्राकृतिक होने लगा है, तो राम और कृष्ण से में थोड़ा थोड़ा प्रेम भी होने लगा है। क्या यह भी जप का फल माना जाएगा? वैसे मैं कृष्ण भक्त हूं, प्लस राम जी भी अच्छे लगते हैं, क्या यह व्यभिचार तो नहीं? काइंडली गाइड। अच्छा आपका प्रश्न है, हमारे ख्याल से कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। पहली बात तो जब सबसे बड़ी साधना, आपने बोला कि जब सही साधना है, बिना जप के कुछ भी नहीं हो सकता। जप ही संत बनाता है, जप ही अंतःकरण शुद्ध करता है। जो लोग प्रवचन सुनते हैं और जप नहीं करते, वो प्रवचन अंदर तक नहीं जाता है। जैसे हम किसी का नाम लें तो जिसका नाम नामी को बुला लेगा, वैसे नाम, भगवान का नाम नामी को बुला लेगा, उसके अंदर अचिंत शक्ति हो। ऐसी शक्ति जप में होती है, हम आपको क्या बताएं कि वो सामने भगवान को खड़ा कर सकता है। इतनी शक्ति जप में होती है कि हिमालय चरमरा के नीचे गिर जाए। इतनी शक्ति जप में होती है कि डूबता सूरज उग जाए।
इतनी शक्ति जप में होती है कि कोई व्यक्ति का रोग ठीक हो सकता है। इतनी शक्ति जप में होती है कि वो हमको मूर्ख से ज्ञानी बना देगा। हमारे पास हजारों उदाहरण इसको बताने के लिए। तो जप सबसे सहज, सरल और सरस साधना है। वो एक ऐसी साधना है जो कि आप कहीं पे भी, कभी भी, सोते जागते कर सकते, और यही साधना अंत समय में काम आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साधना है। दूसरी बात हम बोलेंगे, जप में ये पॉइंट नहीं है इंपॉर्टेंट कि हमारा मन लगता है कि नहीं लगता। दिस इज नॉट एन इशू। इशू इज हमारा फेथ है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं। मन नहीं भी लगेगा तो जप का देवता आपको मन आगे पीछे लगवा देगा। आपकी श्रद्धा है। कोई श्रद्धा से अगर हमको बुला रहा है, नहीं जानता कि हम कौन है, तो हम वहां पे चले जाएंगे। तो जप में इतनी शक्ति है। और जप बहुत बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना। आपने लिखा है कि किसी ने दिया मन, ठीक है, जब किसी ने दिया तो अच्छी बात है। लेकिन जब जो है दूसरे की संपत्ति, हम किसी की पेन उठा के नहीं ले सकते, किसी की हम घर में जाके बैठ नहीं जाते। जब ऋषियों की संपत्ति, तो प्रेफरेबल होता है कि कोई महात्मा से या गुरु से कोई दीक्षा गुरु हो जो हमको वो जप दे। ये प्रेफरेबल है। अगर नहीं है तो आप करने लगे, आप मत रोकिए, कोई आएगा तब करेंगे। वो जप का देवता किसी भगवान को या किसी गुरु को आपके लाइफ में ले आएगा। इतनी जप में शक्ति है। वो ग्रंथ ले आएगा और वो कुछ भी ले आएगा। पाठ और जप में इतनी शक्ति। देखिए, हम तो रामायण वायण पढ़ते नहीं थे। बचपन में हमारा पूरा शौक वेदांत पे था। ना रामायण पढ़ते थे, ना भागवत पढ़ते। तो हम किसी के, कोई हमारा एक मित्र था, तो हम उसके घर गए, तो रामायण का पाठ कर रहा था। वो भी हमारा क्लास फेलो था। क्लास, उसके सुर ताल तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उसके बहुत भाव बहुत आ रहे थे। तो हम खिड़की से देखे, हमने कहा कि तुम्हारे रामायण में ऐसी क्या बात है कि तुम जो है, हमें तो बिल्कुल नहीं जमती रामायण, कोई खास में समझ में नहीं आता और बहुत सिंपल सिंपल लगती सब बात। तो उसने कहा, नहीं, तुम जो है हनुमान जी की थोड़ी सी जप कर लो, उपासना। और करीब 6 महीने हमने हनुमान जी की थोड़ी सी उपासना किया, ज्यादा नहीं किया। और उसके बाद जब रामायण खोला तो इतनी चौपाई, इतनी बोलने लगी, इतनी बात दिमाग में आने लगी। आप समझिए कि वो लड़का जो फिर हमसे पूछता था कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जप में बहुत बड़ी शक्ति, ये तो करना पड़ेगा। अच्छा है कि किसी गुरु से मिले या किसी संत से मिले जहां आपकी श्रद्धा हो। नहीं मिले तो आप कुछ करते रहिए, भगवान से प्रार्थना। जब आपके गुरु को, कोई भी गुरु होगा, वो आपके पास ले आए। जो चीज आपको समझने की जरूरत है, वो जब आपको आपके सामने किसी संत को ले आएगा, आपके घर में ले आएगा। वो कहीं से भी, पूरे ब्रह्मांड से वो पकड़ के आपके घर के अंदर बैठा देगा। इतनी जप के अंदर शक्ति। हमें नहीं लगता किसी के पास संत रहेंगे बहुत दिन तक अगर जो जप ना करते। दूसरी बात है, जप और जप में जो देवता है, ये दो मत मानिएगा कभी। राम राम और राम रूप, ये दो नहीं होते। ये जप का अपमान है। जहां हमने कहा कि जप ये है और राम दूसरे हैं, वो जप का अपमान हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा जी एक ही। तो राम नाम और राम रूप एक ही है। ठीक है ना, सब लोग हमारे ख्याल से सुन ही रहे हैं। हम यहां से आशा ही कर सकते हैं, वरना हम बुलवाते वहां पे आप लोग से। तो जप में बहुत बड़ी शक्ति। तो ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं प्राकृतिक हो रहा है, मतलब मैकेनिकल हो रहा है। हम बोल रहे मैकेनिकल नहीं हो रहा है। हम आपसे कहते हैं, आप मान 10 दिन के लिए आप पूरा जप बंद कर दीजिए, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे उस जप। तो ऐसा नहीं मैकेनिकल है, वो बहुत इमोशनल है। आप बहुत जुड़ गए हैं उस जप से। नो नीड टू चेंज द जप। अच्छा है कोई और आता है, लेकिन उस जप में अगर आपके कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए उस जप को करिए।
हाँ, दो जगह पसंद, दो भगवान बराबर पसंद आ जाए, ये बात ठीक नहीं। वैसे ये है कि किसी पत्नी को दो, अपने पुरुष के अलावा, अपने पति के अलावा कोई और अच्छा लगने लगे ज्यादा, तो ये जो है मामला ठीक नहीं है। तो कभी भी तन्मयता नहीं आएगी ध्यान में। हाँ, हमारे ही भगवान के दूसरे भगवान एक्सप्रेशन, उनका ही दूसरा रूप है, उनकी याद आती है, आपको देख के उनकी याद आती है। लेकिन टू एक्सक्लूसिव हो जाए तो ये हमारे मन को बांट देगा, और हमारा मन कमजोर हो जाएगा, हमारा प्रेम कम हो जाएगा भगवान से। प्रेम तो एक को पकड़ने पे ही होता है। सो लव इज ओनली विद वन, उसके लिए हम जिएंगे मरेंगे, दैट विल बी देयर फॉर फॉर माई लाइफ। तो आपने लिखा है कि प्रेम, ऑफ कोर्स, जब से बहुत भक्ति बढ़ेगी। दिस क्वेश्चन इज कमिंग बिकॉज यू हैव डन जब फॉर सो लॉन्ग। यू कंटिन्यू, और डोंट मेक इट वेरी फास्ट। पूरा जप करना चाहिए, हरे कृष्ण ऐसे नहीं होना चाहिए, वो स्पष्ट होना चाहिए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नहीं होना चाहिए। वो पूरा साफ अपने को अक्षर सुनाई पड़ना चाहिए। इट शुड बी नॉट टू फास्ट एंड लाइदर टू स्लो। थोड़ा सा मन का पद प्राण बढ़ जाएगा अगर आप जब स्पीड लाइएगा, तो माइंड डिस्टर्ब सा हो जाएगा थोड़ा सा। स्पेशली अगर दूसरा काम हो, उतना ही लीजिए जितना आप कर पाइए। मेक इट इन 2-3 सेशंस इफ वन इज नॉट फास्ट। आई होप देर इज सम क्लैरिटी अबाउट जब। तो खूब जप करिए, खूब ध्यान करिए, कीप ऑन डूइंग योर जप एवरी डे, कीप ऑन डूइंग मेडिटेशन एवरी डे, कीप ऑन डूइंग योर puja every day, and discover the independence from the emotions from the world. You don't need anybody emotionally to give you love. That should be my discovery. हमें भगवान से बहुत प्यार मिलता है। Unless you have this experience that God loves me from inside, हमें कुछ नहीं चाहिए। He talks to me, He walks with me, He laughs with me, He cries with me. I don't have time for anybody else. I'm not dependent on it. सो जपात सिद्धि, एक व्युत्पत्ति है संस्कृत में, जपात सिद्धि। वन मोर व्युत्पत्ति इज देयर, जन्मनाथ पाति, जो जन्म से बचाए वो जप है। इतनी बड़ी बड़ी जप में शक्ति। हम कल ही सुना रहे थे आपको जप वाली बात, कि नर्मदा इतना जप हो सकता है कि नर्मदा किनारे वन महात्मा वाज लाइंग डाउन, रिमेंबर दिस, एंड टिल 10 o'clock he was fast asleep. From Kailash ashram, Chaitanya Giriji was passing. So he scolded him. He said, is this the way to become a sadhu? You do get up and do some jap. Jap kariye aap. वो लेटे लेटे कहा, किधर आइए आप, प्लीज हियर माई हैंड। एंड ही हर्ड द हैम राम राम निकल। बोले, यू हियर माई स्टमक। He plucked one hair. He said, you hear my hair. I have done so much jap on Ram Ram. I need not do it. It is happening now. Each pore of my body does jap. And every time there is not a single second when my jap is missed out. I'm not dreaming. I'm not sleeping. हमें हमारा जप चलिए ना। Till in the dream, you hear your mantra. आप समझिएगा कि your mantra is not पक्का. In the dream also you have to hear the mantra. Make your life a celebration with the God. Come closer to God. Talk to Him. Discover the emotional solutions from the God. If required, for 5 minutes, don't do anything. Just go to your puja room. आप 10 बार एक बात बोल लो, भगवान कुछ बात करो हमसे, कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। आप 10 बार इस बात। हम लोग बहुत फॉर्मल हो जाते हैं। अब रिलेशन विद गॉड इज वेरी फॉर्मल। ओनली वी गो फॉर पूजा, ओनली वी गो फॉर जप। अरे फॉर्मल होने पर रिलेशन नहीं बढ़ता है, किसी की महिमा का ज्ञान होता है। बट अनलेस यू आर इनफॉर्मल विद गॉड, यू विल नॉट डेवलप योर लव विद द गॉड। तो दैट इज रिक्वायर्ड स्लाइटली। और खूब जप करिए, खूब साधना करिए। एंड इफ यू हैव मिस्ड अर्लियर सत्संग, प्लीज लिसन टू अर्लियर सत्संग। एंड आई थॉट आई विल नॉट टॉक हियर एंड नॉट, बट सम हमारा प्रारब्ध है, हर जगह कुछ ना कुछ आता है। यहाँ सिग्नल भी किस तरह अरेंज हो गया, जंगल में मंगल हो गया। ओके, हरिओम। हमारा बहुत बहुत प्यार आपको।
खूब आनंद में रहिए, गीता जरूर पढ़िए, रीड एटलीस्ट 1 चैप्टर ऑफ गीता, इफ नॉट 1 एटलीस्ट 10 वर्सेस ऑफ गीता, इफ नॉट 10 एटलीस्ट 5 वर्सेस ऑफ गीता, जो भी आपको चैप्टर अच्छा लगे आप पढ़िए, एंड डिस्कवर दैट लाइफ वाज हैज मच मोर टू गिव देन व्हाट वी टेक फ्रॉम लाइफ. More you have tapasya and dispassion, more life will give you a lot. More a person has ahankar, more he is deprived. Every person who is deprived, he has ahankar or he has attachment, some bad emotion has deprived him of the love of the God. So don't make yourself a deprived person. Discover more love, more dispassion, and more tapasya. You will feel God is flooding with His love and with His message. चलिए, हरि ओम.